राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान का आयोजन आज पूसा, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें देश भर के राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य नीति, नवाचार और निष्ठा के माध्यम से कृषि विकास को नई गति प्रदान करना तथा आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना रहा। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सभी राज्यों ने अपने अपने प्रदेश में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, किसानों की आवश्यकताओं, फसल उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियों तथा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को लेकर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के उपयोग तथा कृषि में तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सम्मेलन में खरीफ फसलों की बुवाई, उर्वरक उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन तथा कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यों के मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चल रही कृषि योजनाओं, नवाचारों और किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कृषि विकास केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर किसानों की समृद्धि, टिकाऊ खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का माध्यम बने। सम्मेलन का समापन किसानों के हित में केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर समन्वय एवं सहयोग को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ। For a state like Arunachal Pradesh, would like to request timely allocation and release of funds under seed components and development of more certified seed varieties especially suitable for the northeastern agroclimatic conditions. Because our agroclimatic conditions are little bit different. Locally adapted and indigenous germplasm often perform better under local conditions than externally introduced varieties. This is a non-fact and which has been proven time and again. And therefore, flexibility may be kindly be provided for use and promotion of locally suitable varieties and indigenous germplasm. The state also proposes promotion and multiplication of indigenous varieties through government seed farms, the KVKs, FTCs and ICA institutions. Local and regional seed companies may also be encouraged and empaneled for production of seeds suited to the local agroclimatic conditions. And also under seed village program and SMSP, the state requests enhanced support for seed infrastructure, farmer training and seed distribution. Considering the high cost of certified seeds and limited purchasing capacity of farmers in remote areas, enhanced assistance for seed distribution may kindly be considered for the especially the northeastern region. So Arunachal being organic state by default intends to again has this intention of promoting organic and bio-based crop protection approaches in line with the Mission Organic vision of the Government of India, and therefore greater emphasis may be given for promotion of biopesticides, biofungicides, sticky traps and light traps for environmentally safe and sustainable crop production, crop protection. Organic and bio-based crop protection measures have long-term sustainability benefits and help reduce health hazards associated with chemical pesticides residues. Support for a dedicated organic bio-based protection crop protection scheme may kindly be considered under the Government of India's program. वैसे जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये लगता है कि राजभवन की चारदीवारी में रह के शपथ दिलाने का और कभी कभार यूनिवर्सिटी में जाके कन्वोकेशन का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आचार्य देवव्रत ऐसे हैं जो सप्ताह में 2 दिन गांव में निवास करते हैं। गांव के स्कूल में 2 दिन गांव में जाते हैं, रात्रि निवास भी गांव में करते हैं। कभी मैंने उनको हल चलाते हुए देखा, अलग अलग तरह से ग्रामीण भारत की किसानों की सेवा कर रहे हैं। और एक विशेष बात और जो उनके प्रति आदर से और श्रद्धा से कर देती है, अभी हमने जो खेत बचाओ धरती बचाओ की बात कही, आचार्य देवव्रत जी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो प्राकृतिक खेती
अब उसके बारे में वही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे यशस्वी कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अपने विषय में वो सदा से इतने गंभीर रहते हैं कि हर विषय की माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह तह में जाते हैं, तो मैं उनको विशेष आभार प्रकट करता हूं आज के इस आयोजन के लिए। अब थोड़ी सी चर्चा में आपके बीच में, आजकल मैं गांव में जाता हूं, जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, लोगों के बीच में सीधी वार्ता मैं करता हूं और जब ये कहता हूं तो वो सब एक स्वर में बोलते हैं कि जी इससे हमारा उत्पादन घट जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। अब जब मैं उनसे बात करने लगता हूं तो पता लगता है कि वो प्राकृतिक खेती को जैविक खेती समझे हुए हैं और जैविक खेती को हमारे देश में पिछले 40 सालों से भारत सरकार, प्रदेश सरकारें प्रोत्साहित करती रही, लेकिन इन 40 साल में पूरे देश में कोई भी मॉडल जैविक खेती के नहीं दिखाई दी। इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। पिछले दिनों एक घटना श्रीलंका में हुई, लोगों ने उसको भी बड़ी तेजी से उछाला, जैविक खेती थी इसलिए भूखे मर रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आप सबके बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्री महोदय, डीजी साहब और आप सभी के बीच में, कि जैविक खेती भारत की खेती नहीं है। डॉक्टर हार्वर्ड अपनी पत्नी के साथ 1905 में भारत में जैविक खेती का प्रचार करने के लिए आए और वो इंदौर के राजा ने उनकी व्यवस्था की। जब उन्होंने पूरे देश में घूम करके देखा और पाया कि तू यहाँ क्या ट्रेनिंग देगा, तेरे से तो ज्यादा यहाँ के लोग पहले ही नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और वो कुछ समय के बाद वापस चले गए। लेकिन ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द इस देश को दे के गए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसमें जो केचुआ प्रयोग में आता है, अर्थवर्म, वो मिट्टी खाता ही नहीं, बड़ा कमजोर सा है, और वर्मी कंपोस्ट बनाने में 1.5-2 महीना लगाता है। उसके लिए पिट बनते हैं, गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, फिर उसको 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन। और आज जो आप सभी ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें आप सबका ध्यान इस दिशा में था कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से कमजोर नहीं रहना चाहिए। यदि 1 एकड़ में गेहूं और धान की भरपूर फसल लेनी है तो 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए, ये आप लोग निर्देशित करते हैं। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो आप यूरिया खरीदो, 60 किलो डाल दो, कुछ समय के अंतर से 60 किलो नाइट्रोजन भी पूरा और उत्पादन भी पूरा, समझ में आए। लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना है तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ को चाहिए। अब क्या इतना पशुधन भारत में है कि 300 क्विंटल गोबर की खाद, 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डाल करके 60 किलो नाइट्रोजन पूरा किया जा सके? नहीं। कृषि वैज्ञानिक ही पैदा होंगी, और मीथेन आप सब जानते हैं, साइंटिस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने में जैसे रासायनिक तरह के कीट हैं खेत में, एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से 2 गुना। अब जब इतनी जैविक खेती में गोबर की खाद खुली मिलेगी तो शत्रु कीट को खुला भोजन मिलेगा तो उसका परिवार बढ़ेगा। वो मित्र कीट को खाएगा, जैविक खेती की बीमारी को नष्ट कर ही नहीं सकते। उस पर दुनिया भर का साल में उसके मॉडल नहीं बन पाया। तो मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, एक ही जगह जैविक खेती, वहीं पर प्राकृतिक खेती, किसान को कंफ्यूज किया जा रहा है।
इसको हमने बंद करना चाहिए। और इसलिए बंद करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती से ज्यादा उसमें कुछ भी अलग से नहीं। अब मैं प्राकृतिक खेती की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबकी मेहनत और परिश्रम से भारत ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 63,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन ज्यादा है। एक असाधारण उपलब्धि है। चावल में दुनिया में नंबर 1 हो गए, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। इसमें भी उत्पादन बढ़ा है, जरूरत और है लेकिन उत्पादन बढ़ा है। और इसलिए आज टीम एग्रीकल्चर हासिल की है। और किसानों को प्रणाम करते हुए आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब अपने, क्योंकि उनकी मेहनत से ये उपलब्धि हासिल की है, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार ताली बजा के भारत के किसानों का हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये असाधारण उपलब्धि है। अब मैं सभी राज्यों का अभिनंदन करता हूं, मंत्रियों का अभिनंदन करता हूं। आपने अपने राज्य में काम किया, इसलिए तो भगवान का वरदान है। मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। अभी 2 प्रेजेंटेशन आपके सामने आए। आज मैं अपने मंत्री साथियों से भी कहना चाहता हूं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किसानों की जिंदगी को और बेहतर और आसान बनाना है। केवल पेट नहीं भरना, पोषण उपलब्ध कराना है हमारी जनता को। देख रहे थे आरटी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।